about the basic genres and the basic styles of writing. हम बहुत से आप लोग सोच रहे होंगे जी ऐसे भी तो हम लिखते ही रहे हैं या पढ़ते ही रहे हैं, you know, but I would give you a very small instance and very small example. जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, so what do you see? You see books, but they are not like randomly fitted books. उनकी प्रॉपर सेग्रीगेशन हुई हुई होती है, और वो सेग्रीगेशन किस बेस पे हुई होती है? अकॉर्डिंग टू देयर genres, their languages, their types, their styles in which they are written. So it's really important कि आपको पता हो कि राइटिंग के कितने स्टाइल्स हैं और उन स्टाइल्स में कौन कौन सी requisites हैं, उनके लिखने के तरीके क्या है. So and crafting your skills is, you know, very important towards achieving excellence. So this is one of the way to craft your writing skills. Plus, when you write, you need to fulfill the expectations of your viewers, your readers. क्योंकि अगर हम अपने रीडर की कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते, we are not a successful writer. हमें फॉर एग्जाम्पल बुक रिव्यू है या मूवी रिव्यू है, तो पीपल वुड एक्सपेक्ट कि आप अपनी राइटिंग में you should be able to write about the characters, the theme of the movie, the motives, the music, the evolution of the story, किस तरह से story build up हो रही है, या आप science fiction लिख रहे हैं या thriller लिख रहे हैं. So people are looking forward to a particular kind of information. So if you are not well versed with the type of writing, so you won't be able to address your reader's expectation. That's why. So familiarity as a writer, इसकी अपनी एक importance है इसको जानने की, और as a reader अपनी है कि as a writer तो हमें obviously if we know what we are going to write, तो we will be able to organize the information, we will be able to understand the pattern in which it is supposed to be written. हमारा जो thought process है उसी तरह से काम करेगा, and we will have, you know, guides on what to say and when to say. सही बात को सही मौके पे कहने से ही असर होता है. So if you know the pattern, if you know the way, if you know the style, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं. एंड फॉर रीडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसको पता हो कि मैं क्या पिक करके लाया हूँ पढ़ने के लिए. ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ. ही इज सपोज टू नो, क्योंकि इट हेल्प्स रिकग्नाइज, ठीक है, कि मैं एग्जैक्टली पढ़ क्या रहा हूँ. दूसरा ये हमारा भी एक रीडिंग, जिस तरह राइटिंग स्टाइल्स होते हैं वैसे रीडिंग स्टाइल्स भी होते हैं. सो व्हेन you know what you're reading, you can adjust your reading style. So that's why it's very important for the writer as well as for the reader. So basically 6 styles हैं, 6 genres हैं जिनको हम बहुत very basically, क्योंकि ये आगे जाके branch out हो जाते हैं. Every style and every genre has so many branches of its own. So many, you know, अब वैसे भी with the growth of language, with the growth of literature, आपको पता है वक्त के साथ साथ बहुत सी नई चीज़ें आ जाती हैं. So first of all is descriptive writing. Descriptive writing is just like painting a picture. And to paint a picture, what should you have? You should have colors. And here, to paint a picture in words, what should you have? Great vocabulary. Great collection of words. किस स्पेशली आपको चाहिए? एडजेक्टिव्स, क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जी हमारे? वो दे डिस्क्राइब. एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आप जब कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे तो आप अपने रीडर के दिमाग में कुछ पेंट नहीं कर पाएंगे. सो एडजेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास अच्छी कलेक्शन होनी चाहिए. आपकी अच्छी कलेक्शन से आपके सेंटेंसेस में जान पड़ जाएगी. देन you should know how to use the verbs. Correct usage of verbs. Synonyms, और synonyms का accurate usage वो होना चाहिए आपको. इसके अंदर similes, metaphors आते हैं, और हमें बचपन में जिस तरह से सिखाया जाता था 5 senses, they all are included in writing a descriptive writing. In painting a picture, you should be able to hear, you should be able to sense everything. You should be able to, in fact, touch
वो एक इमेजिनेशन का वो लेवल क्रिएट हो जाता है जिसमें आपको लगता है शायद आप सामने पड़े पेस्ट्री को आप सूंघ भी सकते हैं शायद, जो कि आप पढ़ रहे हैं जिसके बारे में. सो इट्स ऑल हाउ यू राइट. So, second one is expository, expository, since we are confused between, American and British English. So, expository or expository piece of writing means just the facts. इसके अंदर आप अपने opinions नहीं डाल सकते. इनमें आप facts डालेंगे, इनमें आप numbers डालेंगे, इसमें आप real history based चीज़ें डालेंगे, real research based चीज़ें डालेंगे. और इसका मकसद क्या है इस टाइप ऑफ राइटिंग का? द टाइप ऑफ राइटिंग विच इज एक्सपोजिटरी, इसका मकसद है इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन. रीडर को इन्फॉर्म करना, उसको एक्सप्लेन करना. अब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हर तरह की प्रोसीजरल राइटिंग्स आ जाती हैं. इसमें साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं. जिस चीज़ में प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो इसमें इंक्लूडेड है. इसमें प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सोल्यूशन, कॉज इफेक्ट, कंट्रास्ट, कंपैरिजन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें. सो लेट्स स्किप. what are the requirements, what are the skills you need to craft the way of expository writing? Usually थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होता है, ही शी इट वगैरह से नहीं यूज हो रहा होता. दे ही शी सॉरी कह रही हूँ, आई मी ये नहीं यूज हो रहा होता. ही शी इट दे देम ऐसी चीजें यूज हो रही होती हैं. ईच पैराग्राफ शुड बी एबल टू कम अप विद अ डिफरेंट आइडिया, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट आइडिया. Each paragraph should be segregated. Then the arguments should be in order. अगर आपकी arguments, आपकी information, आपका process इस order से नहीं explain हो रहा होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा और अपना मतलब खो देगा. So the procedure, it contains the procedure, it contains the process, so it has to be in order. And you should be citing the sources of your information. जहां से भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन गैदर की है, वेदर इट बी न्यूज़पेपर, वेदर इट बी अ बुक, यू हैव टू, या फिर इंटरव्यू है अगर किसी का तो आपको उसके एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करने होते हैं. एंड यू शुड बी एंडिंग अप विद ग्रेट कंक्लूजन्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपकी कंक्लूजन आपकी पूरी राइटिंग का जूस होती है, उसमें से बताती है. थर्ड इज persuasive writing. Persuasive writing means convince me. So you have to be very convincing if you want to adopt the style of persuasive writing. So this is the kind of writing that states your opinion, the writer's opinion, and it influences the reader's mind. आपको एक सबसे आम मिसाल है हमारे पास, जो हमारे एड्स बनते हैं, जो मॉडर्न डे एडवर्टिजमेंट्स हैं, जिसमें लिखा होगा ये तेल लगाएं तो गंजे के सर पे बाल आ जाएंगे, ये करें तो ऐसे हो जाएगा. So these are all just the little examples of persuasive, being persuasive. So persuasive writing is something which इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा research करनी पड़ती है, because you have to prove. ठीक है? And you should be able to research the both sides. आपके अंदर biases नहीं होने चाहिए. Your writing should not reflect your biases. It should reflect your research and your opinion. And फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपको करना क्या चाहिए? इसके बारे में चाहिए कि आपको कोई ऐसा टॉपिक पिक करें जिसके बारे में यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. इफ यू आर पैशनेट अबाउट द टॉपिक, यू वुड बी एबल टू राइट in a very good way. If like I don't like politics, so I cannot write about politics. I don't feel passionate about politics. If I feel passionate about women rights or human rights, I would be able to write it as long as I want to, क्योंकि मेरा अंदर उस चीज का पैशन बहुत ज्यादा है. I am जिस चीज को आप एडवोकेट कर रहे होते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा वकालत कर रहे होते हैं कि ये चीज तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसका हामी और नासिर हूँ, वो आपको जरूर उस पे जरूर आपको लिखना चाहिए, क्योंकि यू वुड बी राइटिंग फार बेटर देन पीपल हु आर नॉट हैविंग सच पैशनेट ओपिनियंस अबाउट दोज टॉपिक्स. एंड यू शुड बी एबल टू, यू शुड नो योर ऑडियंस. अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो ऑब्वियसली बच्चों से बात करने का अंदाज,
ख़वातीन से बात करने का अंदाज, स्कॉलर्स से बात करने का अंदाज, एक लेमैन से बात करने का अंदाज, दे आर ऑल डिफरेंट. सो यू शुड नो योर ऑडियंस एंड डोंट ड्रैग, जस्ट कीप द रीडर हुक्ड ऑन. ये तो खैर सभी में अप्लाई करती है चीज़. यू हैव टू कीप योर रीडर हुक्ड ऑन, क्योंकि द मोमेंट यू लूज इंटरेस्ट, जिस वक्त रीडर बोर होने लग गया तो फिर परेशानी वाली बात हो जाती है. ठीक है. एंड एम्फसाइज योर पॉइंट, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज परसुएसिव, यू आर परसुएडिंग द रीडर. एम्फसाइज योर पॉइंट, एंड इफ यू फील दैट इट इज रिक्वायर्ड, रिपीट एनी सेंटेंस, एनी वर्ड जिसके ऊपर आपको लग रहा है मुझे इसको जोर देना इस पर जरूरी है, जस्ट टू पुट माई थॉट्स अक्रॉस, यू नो. तो इसलिए यू शुड बी रिपीटिंग दोज वर्ड्स और सेंटेंसेज और थॉट्स. नेक्स्ट है जी, फोर्थ है ये, नैरेटिव राइटिंग. नैरेटिव राइटिंग इज समथिंग जो हमारे बच्चे रोज स्कूलों से उठा कर ले आते हैं. जी इसके बारे में नैरेटिव लिखते हैं, छुट्टियों में क्या हुआ, नानी के घर गए तो क्या हुआ, बाग की सैर को गए तो क्या हुआ, सो ट्रिप पे गए तो हाउ इज दैट. सो every other day teachers and parents and students, we all have to face this type of writing, narrative writing. Narrative है क्या? Narrative is just storytelling. कि जो you know the kind of verb oral communication we hold every night with our children, bedtime stories, this is all narrative. It is all storytelling. So what are the stories about? Stories are about the experiences. ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, ये फिक्शनल भी हो सकता है, इमेजिनेटिव भी हो सकता है. ठीक है. मोस्टली फिक्शन ही इसके अंडर आता है, लाइक फिक्शंस एंड प्लेज एंड नॉवेल्स एंड थ्रिलर्स एंड स्केरी स्टोरीज, हॉरर, ये सारा कुछ इसी के अंडर, नैरेटिव के अंदर आता है. एंड नैरेटिव इज वेरी डायमेंशनल. इट कैन बी एजुकेशनल, it can be motivational, and it can be entertaining as well. So इसका बड़ा it's a wide horizon when we come to narratives. इसीलिए हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है एकेडेमिया में ये narrative writing देना. अब इसकी requirements क्या है? How to craft your skills? Great vocabulary, first of all. Great vocabulary होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं. स्टोरी सुना रहे हैं तो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पेंट भी कर रहे हैं. सो यू हैव टू हैव great vocabulary. Then you should be able to, since you're writing, you're not telling a story, you're writing a story, you should be able to grasp and use all the punctuation marks, grammatical marks हैं जो हमारे, वो we should have strong hold on them, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है, हमारे एक्सप्रेशन पे बहुत फर्क पड़ता है. हमें I always recommend that we should be simple and flowy. जहाँ पे हम chewy हो जाएंगे using too much difficult words or using too complicated conjunctions and sentence structures, वहाँ पे हमारी स्टोरी का फ्लो खराब हो जाता है. जब स्टोरी का फ्लो खराब होता है तो रीडर का मज़ा खराब होता है. तो you don't want to do that. That's why it should be very simple. I'm not telling कि आप difficult words deliberately मत use करें. No. If you are, if the sentence requires, and if the style of writing requires, and if you know your audience that they'll be able to understand, do use. But वो जो एक स्टाइल रहता है ना, कई many of my students do that, वो ढूंढ के वो synonyms मुश्किल किस्म के लगा के, तो just to impress. No, that's not okay. Don't try to impress. Just be yourself while writing. Be yourself. Be flowy, be simple. और सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना है. आपको वर्ड्स कोई नहीं बताएगा कि आप ये यूज करें. सी बहुत ज्यादा, अब जैसे एक ही सेंटेंस के अंदर अगर मुझे ये हर सेंटेंस पे and it happened with me while I was reading a book. It happened with me, like in every paragraph I had to open the dictionary. So I was like, क्या यार, मतलब तंग आ जाता है. It's ridiculous. तो आप it's at the same time gaining knowledge. You learn many new words. लेकिन आपका जो पढ़ने का मजा है ना, क्योंकि it's a storytelling, तो आपकी स्टोरी खराब हो जाती है. So
And there should be a quest. In the narrative writing, there should be a quest. There should be a search for something. कहानी बहुत ऐनी सी नहीं हो जानी चाहिए. It should have a point. It should have a search. क्योंकि ये क्वेस्ट का जो एलिमेंट है ना, ये उसके अंदर थ्रिल को कायम रखेगा. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स है ना, वो आप दो तरीके से इसमें रख सकते हैं. जैसे कि मूवी शुरू होती है और मूवी शुरू ही फ्लैशबैक से हो जाती है, या फिर शुरू हुई और पहले आज के सीन से शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी वक्त आके एक फ्लैशबैक आई तो पता चला कि ओ दिस वाज द रीजन ऑफ दिस इवेंट. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर व्हेन इट इज इन ऑर्डर, एंड नॉन लीनियर जब वो थोड़ा हैपहैजर्ड होता है, रैंडमली पीछे से फ्लैशबैक डाल दी, एक मेमोरी डाल दी, या किसी का बीच में कैरेक्टर आ गया. इस तरह से अक्सर ऐसी बुक्स होती हैं, एक जिसमें चैप्टर्स होते हैं. एक हम बुक पढ़ना शुरू करते हैं, while we reading chapter 1 it's about one character, and when we switch to chapter 2 that character is gone and we are reading another character. So but when after like chapter 3 or chapter 4 that character comes again, and फिर हमें समझ आता है कि रब्त क्या था बीच में, जो इनका आपस में ताल्लुक था कैरेक्टर्स का, वो क्या था. So it all depends on your way of writing and your story, कि आप किस तरीके से उसको सुनाना चाह रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टेक्निकल राइटिंग. दिस इज नंबर 5 इन द बेसिक जॉनरास. टेक्निकल राइटिंग बहुत ज्यादा वैरायटी है इसके अंदर, बहुत सी फील्ड्स में यूज होती है. सुनने में ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी मुश्किल सी चीज है मुश्किल सी चीज एक्चुअली. फॉर मी मैं तो नहीं कर सकती ये, बहुत कोशिश करूँ तो फिर शायद कर लूँ. It is used in very different fields, और it is altogether different from the rest of the styles. ठीक है. कैसे डिफरेंट है? जैसे it is on a particular subject जिसके अंदर हमें डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, हमें गाइडलाइंस चाहिए होती है, हमें प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं. अच्छा, अब ऐसा क्या होता है जिसके अंदर हमें गाइडलाइंस चाहिए, प्रोटोकॉल्स चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए? ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे पास, जो जब हम एक डीवीडी प्लेयर या माइक्रोवेव ओवन खरीद के लाते हैं तो हमारे पास उसके साथ एक बुक आती है, ओनर्स मैनुअल कहते हैं जिसको. एग्जैक्टली वो बुकलेट हमें बताती है कि इसको यूज कैसे करना है. जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीद के लाए हैं और आपको बताएगी कि ये मोड्स हैं इसके अंदर, इस बटन का ये मतलब है, if the machine gives this error to go to this page, and this is very technical, very tricky. और लेकिन इसके बगैर आपको पता है कि गुजारा नहीं होता. So owners manuals, employee handbooks, जैसे आप if you join a bank or a company, वहाँ पे employee handbooks भी होती हैं. See, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि how to what are the protocols, what are the ways to carry yourself in an organization, आपके rights क्या हैं, आपकी duties क्या हैं. सो इंस्ट्रक्शनल है, राइट. सो इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर्स हैं हमारे, इनकी कंपनीज में बहुत यूज होता है. बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब में ये यूज होता है. सो इट हैज अ ह्यूज होराइजन. बहुत फील्ड्स हैं इसके लिए भी. और इसको अगर somebody wants to write this type of writing, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? You should be able to understand the technology you're writing about, the thing you're writing about. You should be able to understand it. If you don't understand a car, you cannot drive a car, and you cannot guide anybody to drive that car. So, research and exploration skills. आपके अंदर research करने का एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, भरपूर किस्म का मद होना चाहिए कि आप थके नहीं रिसर्च कर करके, एक्सप्लोर कर करके, डिस्कवर कर करके थके नहीं आप. वो जो एक ईगरनेस होती है ना, जो पैशन होता है इस चीज़ के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक वाइल राइटिंग सच टेक्निकल राइटिंग्स. स्टेप बाय स्टेप आप अगले को गाइड करते हैं, जस्ट लाइक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रेसिपी, कि आप पहले अंडा डालें या पहले मैदा डालें या वट एवर. सो इफ़ यू डोंट फॉलो द स्टेप्स, व्हाट हैपन्स कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है. टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि if I know something about the technology of a particular part of a car, I might not be able to understand the whole parts of the car that deeply. So I need people जिनके अंदर ये segregate कर दिया जाए और वो टीम वर्क बन के टीम की तरह से ये काम करें. So technical writing is
pretty technical. Last is poetic. Poetic is poetry, you know, it's a whole world in itself. ये ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो आपको मेरा तो ये मानना है कि ये आप सीख नहीं सकते, ये आपके अंदर होता है. इट्स समथिंग यू गेट फ्रॉम गॉड. बट इफ you want, you can craft it. It was really strange when my kids, you know, probably they were in class 1 or 2, when they came home and उसमें लिखा हुआ था कि जी पोएम लिखें इस चीज़ के ऊपर. And I was like, बच्चा पोएम लिखेगा, मेरे लिए it was a new concept. हाँ, बच्चा पोएम लिख सकता है यार, why not? If he understands the pattern, anybody can write the poem. So होता क्या है इसमें? Patterns होते हैं of course, rhythm होता है उसका एक, उसके अंदर राइम्स होते हैं, उसके अंदर सीरियस भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, उसके अंदर यू कैन लाइक क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है पोएट्री में. यू कैन बी एज मच क्रिएटिव एज यू कैन अफोर्ड टू बी, राइट? वर्सेस स्टैंजाज, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. और इसमें होता क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ वर्सेस, द लाइन्स, दे डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इट इज. इफ इट इज haiku, it would be a 3-lined. इसी तरह से sonnets हैं, free verses poems होती हैं, lyrical होती हैं जिनका कोई इसमें से नहीं होता, वो तो it goes with the sur and tunes. But there are certain tips you can craft and be a better poet. They are like if you use metaphors and similes. So through poetry, what are you doing? You are again, you know, explaining something, describing something, telling something. So you need a lot of, you know, solid words चाहिए आपको. Abstract words नहीं use करें इसके अंदर. इसके अंदर concrete words use करें, इसके अंदर imagery use करें, इसके अंदर and what you can do is you can read lots of poems, different poets की, different styles की, different sad, funny, हर टाइप की आप पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि यार मेरा स्टाइल क्या है, व्हाट डू आई वांट टू राइट लाइक, एंड अंडरस्टैंड द सिलेबल्स ऑफ वर्ड, क्योंकि राइम्स एंड रिदम्स सिलेबल्स के साथ बनते हैं. सो होप इट वाज गुड. दीज वर द 6 genres, द बेसिक genres. मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ बिकॉज दे ब्रांच आउट, दे हैव सो मेनी अदर फॉर्म्स. और होप आपको अच्छा लगा था, ये अच्छा लगा है आपको. और प्लीज शेयर योर कमेंट्स, share your suggestions with us. I'll be waiting. Thank you. Allah Hafiz.